Okay, students, my voice is audible. Yes, sir. Okay, today we will discuss the rest part of IGBT, and this is your last class of your first module. Okay, and I also give you some assignments. Uh, Everybody completed or not? How many of you completed the assignment? Nobody is completed yet. Okay, okay, you just completed and submitted. According to the submission, I will give you the first module assignment mark. Okay, and after completing the assignment, you will also this document is also used to prepare for your exam also. Okay, that's why I am giving the assignment, and it is also a part of curriculum that you have to submit your assignment reports. Okay, according to that, the mark will distribute to you, all of you guys. Okay, then fine. And I have to start. I will share my slide of the. I will discuss the rest part of IGBT, then working strategy, and the gate driver circuit of MOSFET and IGBTs. Okay, I will explain all these parts. You will carefully listen, and if you feel any doubt, then you can ask. My slide is now visible. Yes, sir. Okay. I want to discuss about the IGBT working principle. Then, what is a IGBT? IGBT is a insulated gate bipolar transistor. But I'm telling that insulated gate bipolar transistor. Okay. Transistor is a switch, acts as a switch. Bipolar, why? Bipolar means bidirectional conversion. Bidirectional conversion is possible through IGBT. And insulated gate is your insulated. This is your gate, and I just put a metallic insulation, that is silicon. This is silicon oxide dioxide. This is used for insulation purpose. Okay, and as I explained before, that is your P type, P plus. Okay, and P plus means your majority charge carrier is hole, minority charge carrier is electron, and here N minus means doped with, heavily doped with the electrons. That's why I am giving here N minus. That means majority charge carrier is electron and minority is your hole. Similarly, majority, this is your neutral P. Neutral means not doped with any particles like electron or holes. Okay, means electron and holes. Holes are the majority carrier in the P-type semiconductor, but electrons are also equally present there. And N plus means, okay, and here N plus means I have doped with
heavily doped with electron and lightly doped with holes. These are the semiconductor materials I am taking to design a IGBT, insulated gate bipolar transistor. Insulated gate bipolar transistor. Okay, and as what I am telling before, that N-type material, this N-type semiconductor is connected to the directly connected to the body region. Okay, N-type material, this is your N-type, this is your N-type. The N-type material or N-type semiconductor is directly connected to the body. Okay, and this is also known as your emitter. And here the P-type semiconductor is connected to the collector. This is your collector terminal. This is your collector terminal. It is directly connected to the P-type of semiconductor. And okay, and you just connect E emitter through a load, resistive load RL, and this is your supply voltage. This may be your battery. Okay, I am written down that this is your VCC. That means here is your negative terminal, this is your positive terminal. We already know in the diode principle that we are already know. This is your anode, this is your cathode. When this is your positive terminal connected to the positive voltage source and negative terminal to the connected to the negative side or negative voltage source, then this is your forward bias, otherwise this is reverse bias. Okay, that means this is your negative to positive. The current will flow in this direction and the current will flow in this direction. Okay, and it will pass to the P. P means the P type of semiconductor. P is your always positive terminal connected to the positive side, and the current will flow in this direction. Okay, this is P to N. Current will flow in this is okay. But however, when your voltage is supplying or you are increasing the voltage, the current flow is also increasing. This is the current is P to N. It is possible, but N to P, this is impossible, because N to P there is no extra voltage source or extra current source, because gate is your open circuited till now. Then it will J1 junction is acts as a forward bias region, because P to N the current will flowing, but in this section N to P the current will not flow, because N to P, N is your what is N is your positive and P is your negative. That's why the current will not flow here, because the positive current will flow through P to N. This is forward bias, but N to P, this is your reverse bias. Then if you are increasing the voltage continuously, then also it can't be able to transmit its electron from N to P. Then what we have to do, that is our main aim. Here I am giving, here I am supplying a positive current, or this is your negative side, this is your positive side. That means the current is here positive current. When I am giving here positive current, that means in this circuit, what is the positive is the majority carriers. Already positive current will flow. This is your majority carrier. This is a insulator property. Okay, like as a MOSFET. When the positive current flow, the outermost in the silicon oxide, what we are getting? This is a positive side, because positive current will available, means the positive side is, this is positive side. That means it will attract electron towards it. When I am increasing the voltage, gate voltage, then definitely the gate current, this is your gate current, will gradually increasing, and the positive current is also increasing. That means the electron observe capability
of this circuit is gradually increased. Okay, and the accumulation of electron is occur here. Okay, and if the accumulation of electron is occurred here and the accumulation of electron is more and more and more, then it will connect and this will make a channel here. Okay, after accumulation more electron in this n terminal, then there will be a possibility of a channel. That means what is happening when we are increasing the voltage, gradually increase the voltage, then the current will flow like this, and due to the n channel or electron channel, the current will pass, and this is your circuit. And here also similar, current will pass, and this is your circuit, and this is your the addition of the current. If this is your IE1, this is your IE2, then total current IE is equal to IE1 plus IE2. Okay. And the circuit will complete like this. Okay, any doubt? Any doubt, students? सर Yeah. सर J1 जंक्शन में हाँ, होल्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। देखो यहाँ पर एक बात मैं समझा देता हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। इधर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दिस इज ए P प्लस, yes or no? यस सर। And this is your N minus, that means this is your electron content and this is your hole content. Uh, and PN junction is possible, so I just make the name, that is J1. Okay? यस सर। Okay. And we know that in the माने हम लोग क्या जानते हैं कि डायोड ये है, डायोड में अगर डायोड ये है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, राइट? पी साइड को अगर हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और एन को हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव से मैं कनेक्ट किया है, दिस इज योर पॉजिटिव साइड, दिस इज योर नेगेटिव साइड, मैं कनेक्ट किया, देन करंट पॉसिबल होगा, बिकॉज डायोड शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, करंट इसमें अंदर पास करेगा। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हियर, पी है, एन है, मैं पी को पॉजिटिव दिया और एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, देन ये वाला जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। यस सर। तो इसके बाद क्या होता है, एन वाला और पी वाला, ये मेरा पॉजिटिव करंट जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव करंट जा रहा है यहाँ पर, अगर मैं एन से, यहाँ पर मेरा पॉजिटिव करंट जा रहा है, यहाँ पर ऐसे ये पॉजिटिव करंट गया 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 गया, फिर एन से निकल के फिर आ गया, तो अभी मेरा पॉजिटिव करंट जा रहा है, अगर मैं इसको ऐसे रिवर्स कर दूंगा डायोड को, देखो इधर देखो, ये आपका डायोड है, राइट? यहाँ पर मैं क्या किया, मतलब आपका डायोड ऐसा हो गया, अभी क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपका एन साइड हो गया, ये आपका पी साइड हो गया, जो वाला केस J2 जंक्शन में पे हुआ है। देखो ये एन है, ये है पी है, एन पी है, तो एन, अभी मैं पॉजिटिव करंट अगर दूंगा तो ये डायोड ऑफ रहेगा, ओपन सर्किटेड रहेगा, ये सुन लो। यस सर। तो अगर ये ओपन सर्किट रहता है तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन में पी करंट पॉजिटिव रहा तो इसको मैं बोल रहा हूँ फॉरवर्ड बायस। क्लियर हुआ ये वाला जंक्शन दोनों? हाँ या नहीं? बोलो।
डाउट कहाँ रहा? बोलो। हम्म? है क्या डाउट? सर J1 तो फॉरवर्ड हुआ, उसके बाद J2। क्या समझ नहीं पा रहे हो तुम? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो? ओके, तो देखो, ये आपका पी एन, फिर हुआ पी एन, राइट। यहाँ पर देखो पी, और एक दिखा देता हूँ, ये वाला देखो इधर, ये आपका हुआ पी है, ये है एन, ये है पी, ये है एन, ये है कि नहीं है? यस सर। अगर मेरा ये पी से एन को मैं कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं पॉजिटिव करंट दे रहा हूँ, ये आई पॉजिटिव दे रहा हूँ, तो करंट पॉजिटिव हुआ तो पी एन, पी से एन तक करंट फ्लो करेगा। यस सर। तो ये हो गया आपका J1। यस सर। अगर यहाँ पर एन है, यहाँ पर पी है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? इधर जाएगा करंट, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सर वो रिवर्स में ऐसे होगा। क्यों होगा? तुम तो पूछ रहे हो ना रिवर्स बाय क्यों होगा। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अगर मेरा करंट पॉजिटिव करंट पास कर रहा है, ठीक है, और एन से पी को करंट पास करेगा क्या? नो सर। तो वही तो है, इसीलिए तो हम लोग J2 को रिवर्स बोलते हैं और J1 को फॉरवर्ड बोल रही। ये समझ में आया? यस सर। अभी वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? पहले क्या था मेरा भी, यहाँ पर देखो, मेरा भी जी ई को मैं दिया ही नहीं था, तो J1 आपका फॉरवर्ड वाइज था, J2 आपका रिवर्स वाइज था। करंट फ्लो होगा क्या उसमें? नो सर। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो ये वाला करंट आईसी का क्या होगा? आईसी ऑलमोस्ट जीरो होगा, हाँ या नहीं? हाँ बोलो, डाउट है? सर IC करंट अक्रॉस लोड। हाँ हाँ? सर IC करंट अक्रॉस लोड है क्या? करंट अक्रॉस लोड, यस लोड है आईसी। कलेक्टर करंट मतलब आपका कैसे रहा? ये रहा आईजीबीटी कैसा रहा? ऐसा, मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, राइट। मैं दिया अभी, ये कलेक्टर हुआ, ये एमिटर हुआ, ये गेट हुआ, ठीक है। ये वाला करंट आईसी है, कलेक्टर करंट। समझ में आया? यस सर। तो ये आपका J1 था, J2 को रिवर्स बायस था, तो करंट फ्लो नहीं हो पाया, इसीलिए करंट का वैल्यू बहुत डिक्रीज होके है। अगर करंट का वैल्यू बहुत डिक्रीज है, इस करंट को हम लोग क्या करें बोलेंगे? लीकेज करंट। ये कभी अप्लाई होगा जब आईजीबीटी ऑफ स्टेट में होगा, ऑफ स्टेट में होगा। जब लीकेज करंट मतलब भी होगा तो आईजीबीटी ऑफ स्टेट में होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कट ऑफ रीजियन। जब हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं VGE1, VGE2, VGE3, VGE4 and VGE5, then the current will also gradually increasing। ये देखो करंट इंक्रीज करता है, हाँ कि नहीं? हो रहा है? यस सर। समझ समझ में आ रहा है तो ये वाला पार्ट? तो प्लीज, समझ में आ रहा है? यस सर VGE गेट
और एमिटर अक्रॉस वोल्टेज। वोल्टेज है ये वाला, ये देखो ये वाला, ये डायग्राम में ये वाला आईसी है, ये वाला VG, ये ई है। मैं इसको क्या किया, इसको ग्रेजुअली बढ़ाया, तो यहाँ पर वो धीरे 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 उसको क्या किया, वो जो एन चैनल था उसको धीरे 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 मोटा करते गया, मोटा करते गया, मोटा करते गया। जितना मोटा करेगा एन चैनल को उतना करंट ज्यादा पास होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यही वाला पर यही हो रहा है, ये वाला। तो पहले VG मान लो 1 ही वोल्ट दिया था, यहाँ पर मान लो VG मेरा 1 ही वोल्ट है, तो करंट थोड़ा सा बढ़ा। VG मान लो 2 वोल्ट है, तो करंट और थोड़ा सा बढ़ा, मान लो VG 5 हो गया, ठीक है, 5 वोल्ट हो गया, तो करंट फुल्ली एक्टिवेटेड हो गया, IGBT कंप्लीटली टर्न ऑन हो गया, IGBT टर्न ऑन हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट जहां से करंट सैचुरेट हो जाता है, वो वाला पॉइंट को सब एक्यूमुलेट करके आप लोग उसको कनेक्ट करके क्या बना सकते हैं, ये कौन सा कर्व है, ये वाला IC है, ये वाला आपका VG है, तो आप दोनों को मिला के कौन सा कर्व बना, ये आपका है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। क्या हुआ, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आया? यस सर। तो ये वाला रीजन को क्या, ये वाला रीजन को क्या बोलते हैं, ओमिक रीजन। ये वाला रीजन को क्या बोलेंगे, जहां पर लीकेज करंट बहुत कम रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कट ऑफ रीजन, ठीक है। और जहां से करंट सैचुरेट हो जाता है, IC सैचुरेट हो जाता है विथ इंक्रीज इन वोल्टेज, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव रीजन। समझ में आ रहा है? राइट। अभी हम लोग थोड़ा जाते हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक। सर वो लोड लाइन क्या है? हाँ, लोड लाइन, ये वाला जो लोड लाइन है, यहाँ पर क्या है, आप जब वोल्टेज मैक्सिमम करेंगे विथ हाई गेट वोल्टेज, देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो ये आपका लोड है, R है ना, इसको मैं मान लिया R लोड, ठीक है। अभी मैं क्या किया हूँ, ये वोल्टेज के जो वोल्टेज रहेगा तो उसी हिसाब से ये लोड भी एक्टिवेट होगा। ये करंट फ्लो तो उसी हिसाब से VG के हिसाब से होता है। अगर VG ही आपका पूरा ऑन है, VG आपका एन चैनल पूरा बना दिया है, तो VC से ऐसा वोल्टेज जाएगा, जाके वो इसी लोड को क्रॉस जाएगा। तो अगर मैं VCC 1 वोल्ट देता हूं तो लोड कैसा रहेगा, VCC अगर मैं, ये आपका VCC रहा, ये आपका लोड रहा, ठीक है। अगर मैं VCC दिया अभी, तो लोड भी 1 वोल्ट होगा, है कि नहीं, मगर लोड करंट 1 वोल्ट आएगा, 1 एम्पियर आएगा, राइट, यहाँ पर 1 एम्पियर आएगा, मगर ये लोड को क्या करेगा, ये लोड को एक्टिवेट कर पाएगा क्या? लोड का कुछ अप्रोक्सीमेट, ये मान लो ये आपका 10 वोल्ट है, ये आपका 10 ओम है रेजिस्टर, मतलब 1 वोल्ट में 1 ओम एक्टिव होता है, राइट। तो मैं 1 वोल्ट दिया तो 1 ओम एक्टिव हुआ, फिर 2 वोल्ट दिया, 2 ओम एक्टिव हुआ, ऐसे होके 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 पूरा जब ये ऑन होगा, लोड के क्रॉस पास करेगा, ये मैं पूरा 10 वोल्ट जब दूंगा, ये लोड पूरा एक्टिवेटेड होगा। तो इसीलिए ये वोल्टेज VCC वोल्टेज जब पूरा मैक्सिमम पे होगा तो जाके लोड करंट वो मैक्सिमम पे रहेगा। ये वाला आपका VCC मैक्स, ये आपका लोड मैक्स, मैक्सिमम करंट, ये वाला देखो कर, जब आपका VCC मैक्सिमम है तभी जाके आपका लोड भी मैक्सिमम है, लोड करंट। समझ में आया? प्लीज आप क्वेश्चन पूछे, आपको समझ में आया कि नहीं तो बोल सकते हैं ना। यस सर। आया तो समझ में, या और कुछ डाउट है तो पूछ लो, मैं अभी जाऊंगा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक को। नो सर, नोट। ठीक है,
बाकी लोगों का क्लियर हो रहा है? कि बाकी लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का क्लियर हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं पूछ रहे हैं तो मैं वीडियो आपको जब सेंड करूंगा तभी आप देख के समझ लेना। अभी तो कंप्लीट हो गया, मैं सभी वीडियो को मिला के आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जिसका मुझे लैब रिकॉर्ड आया है उन लोगों का मैं सेंड करूंगा। बाकी लोग को मुझे मेल आईडी नहीं है मेरे पास, और उनका लैब रिकॉर्ड भी नहीं है, तो मुझे पता नहीं वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बच्चे। तो मुझे मुझे जो आप लोग अगर जो मुझे भेजेगा उसी को मैं भेज दूंगा वीडियो, आप उन लोगों से कलेक्ट कर लेना, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर कल का एक्सपेरिमेंट का मैनुअल नहीं मिला है। हाँ सर, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का नहीं है? नहीं मिला है, नो मेरे सर। पास ही नहीं मिला। तो ठीक है, ठीक है, मैं सर को बोल दूंगा, वो दोनों आपको सब सेंड कर देंगे अभी। ठीक, ठीक। ठीक है। और यस सर। कुछ? हाँ, और असाइनमेंट टाइम पे दे देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आईजीबीटी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में? मुझे मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग मॉस्फेट में भी पढ़े थे और सॉरी एससीआर में भी पढ़े थे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक? क्यों हम लोग उसको पढ़ते हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग आईजीबीटी हम लोग एक ले रहे हैं मार्केट से, एक आईजीबीटी लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग को पता नहीं है ये कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, उसका कितना टाइम लेता है टर्न ऑन के लिए और टर्न ऑफ के लिए, मतलब टर्न ऑन टी ऑन के लिए कितना टाइम लेता है, व्हाट इज द टाइम टेकन, टी ऑफ के लिए भी कितना टाइम लगता है, हम लोग को पता नहीं है ये दोनों चीज। तो हम लोग को आईजीबीटी को खरीद के क्या करेंगे? हम लोग को तो आइडिया ही नहीं है कितना टाइम लगेगा ऑन लेके और कितना टाइम लगेगा ऑफ करते हुए। तो ये वाला चीज को हम लोग एनालिसिस करने के लिए ये वाला स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक को आपको जानना पड़ेगा। जब आप लोग कभी भी मार्केट से आईजीबीटी खरीदने जाओगे, आप उसका टंडन टंडन कैरेक्टरिस्टिक वो डिपेंड करता है रेटिंग के हिसाब से एंड मटेरियल के हिसाब से। वो बहुत फास्ट कर सकता है या बहुत स्लो करेगा टंडन। अगर बहुत स्लो करता है, आप हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में ये वाला स्विच आईजीबीटी को लगा दिए तो आपका सर्किट ही स्टार्ट नहीं होगा, वहां पर आपका रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायरमेंट ऑलरेडी होके होगा मगर आपका सर्किट स्टार्ट ही नहीं हो रहा होगा तभी। तो हम लोग उसको क्या, इसलिए क्या करेंगे, वो आइदर वो टॉन्डन टाइम को जो है यहाँ पर जो टॉन्डन टाइम है उसको हम लोग बढ़ाएंगे, अदरवाइज हम लोग ये वाला एक आईजीबीटी खरीदेंगे जो टॉन्डन टाइम को बढ़ाने का काम करेगा और टॉन्डन टर्न टाइप का भी फास्ट करने के लिए काम करेगा। वो वाला मतलब टॉन्डन टी ऑन अगर फास्टली ऑन होता है एंड टी ऑफ अगर फास्टली स्विच ऑफ होता है, तभी जाके वो आईजीबीटी बेस्ट होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? है कपलेस आया समझ में? यस सर। अभी अभी हम लोग करते हैं टॉन्डन का टाइम, ठीक है। टॉन्डन का टाइम क्या होता है? टॉन्डन का टी ऑन इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा गया है ये देखो, टी टी एन मीन्स ये है डिले टाइम एंड सेकेंड वन इज योर राइज टाइम। ये है आपका डिले टाइम एंड ये है आपका राइज। समझ में आया? तो क्या है डिले टाइम और राइज टाइम में क्या होता है? डिले टाइम में क्या होता है? डिले टाइम में जब आपका वोल्टेज, ये आपका फुल्ली लोडेड वोल्टेज है, राइट, जहां पर कि मतलब कम, ये आपका रहा ऐसा ऐसा है आईजीबीटी, राइट। यहाँ पर एक एंटीपैरेलल डायोड अगर लगा जाते हैं, ये आपका हो गया आईजीबीटी। ये आपका कलेक्टर है, ये आपका एमिटर है। ये जो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप करेगा उसको हम लोग बोलते हैं VCE, मतलब कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है। जब ये वाला वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज करके 0.9
पे पहुंच जाता है उससे, ये मान लो 1 पर यूनिट है, तो अभी मेरा कहाँ पर पहुंचा, स्लाइडली डिक्रीज करके 0 पर यूनिट पे पहुंच गया। मतलब VCE जब डिक्रीज करके 0.9 VCE पे पहुंच जाएगा, और करंट का वैल्यू क्या रहेगा, करंट का वैल्यू 0.0 से 0 ICE, मतलब लीकेज करंट 0 में होगा। ठीक है, ये करंट जब 0 में होगा वो इंक्रीज करके 0.1 ICE को पहुंच जाएगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, डिले टाइम। समझ में आ रहा है क्या बोला, डिले टाइम समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी मैं उसको थोड़ा ये कर देता हूँ। देखो, वो जो वाला, ये वाला कंप्लीट साइकिल है, ये जो वाला मैं फिगर दिया हूँ ये पूरा कंप्लीट साइकिल है, ये टर्न डाउन एंड टर्न ऑफ का साइकिल शो करता है। मैं आपको टर्न डाउन का टाइम शो बस समझाऊंगा अभी। टर्न डाउन का क्या मैं लिखा, टर्न डाउन टाइम क्या होता है, ये आपका डिले टाइम रहा, डिले टाइम और राइज टाइम को मैं कंबाइन करके टर्न डाउन टाइम T1 डिसाइड किया। तो डिले टाइम में क्या हुआ, डिले टाइम में अगर मैं बोलूंगा TDN में क्या होता है, आप लोग बोलना कि VCE जब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा, किससे, VC एक्चुअल वोल्टेज से और टोटल वोल्टेज से कितना, 0.9 VCE जब डिक्रीज कर जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे T। एंड उस समय क्या होगा, करंट का स्टेटस, करंट का स्टेटस पूरा कहाँ से होगा, 0 ICE से वो इंक्रीज करेगा, यहाँ पर वो डिक्रीज करता है वोल्टेज, एंड करंट का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। करंट का वैल्यू इंक्रीज करने से सर्किट अंडर होगा ना। जब मान लो ये आपका एक ओपन सर्किटेड है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना रहेगा, मान लो ये आपका A टर्मिनल है, ये आपका B टर्मिनल है, ठीक है, ये स्विच आपका ओपन है, यहाँ पर वोल्टेज कितना रहेगा कपिलेश? सर ओपन है तो हाँ, वोल्टेज फ्लो वोल्टेज, नहीं होगा। हाँ मतलब वोल्टेज कितना रहेगा, मतलब वोल्टेज यहाँ पर VAB रहेगा, फेज वोल्टेज, हाँ कि नहीं? सर ए और बी में तो वोल्टेज फ्लो नहीं होगा ना। नहीं, जब एक ओपन सर्किट फ्लो नहीं होगा तो मतलब यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज होगा, इसलिए तो फ्लो नहीं होगा ना। मान लो ये आपका सर्किट क्लोज है, ए है, ये आपका बी है, यहाँ पर वोल्टेज कितना रहेगा, एक लाइन में करंट जा रहा है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, ये टर्मिनल ए है, यहाँ पर टर्मिनल बी है, डेफिनेटली वोल्टेज यहाँ पर VAB इक्वल टू 0 रहेगा, बिकॉज शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वोल्टेज 0 होता है और करंट ही सिर्फ फ्लो करता है। यस और नो? सर वोल्टेज थोड़ा मिनिमम रहेगा। इसमें वोल्टेज क्या बोल रहे हो, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, वोल्टेज वोल्टेज नहीं रहेगा ना सर, किसमें, सर 0 AB में हाँ कौन सा है में, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट में? सर, शॉर्ट सर्किट। डेफिनेटली यहाँ पर अगर मेरा, मान लो ये आपका एक वोल्टेज दे रहा हूँ प्लस माइनस, ये आपका डायोड है, राइट, मैं डायोड को लेके समझाता हूँ। अभी करंट जा रहा है, ये आपका शॉर्ट सर्किट रहा, तो डायोड के एक्रॉस में वोल्टेज कितना रहेगा, VD इज हाउ मच, अरे डायोड शॉर्ट सर्किटेड हुआ ना, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये आपका P साइड है, ये आपका N साइड है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा जब डायोड शॉर्ट सर्किट, हाँ बोलो सर 0, सर 0 डेफिनेटली 0 होगा, राइट। तो इसीलिए ये 0 हुआ बोल के, ये वोल्टेज बहुत स्मॉल है बोल के तो करंट पास किया इसके अंदर। अगर ज्यादा वोल्टेज होगा तो ये करंट को अपोज करेगा ना, ये कहाँ से जा पाएगा वोल्टेज वहां पर, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? हाँ बोलो, इसका कहाँ पर डाउट है, मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, नहीं तो ये समझ नहीं पाओगे।
आपका क्या डाउट है पहले बोल दो, इसी हिसाब से मैं समझा दूंगा। किसी का है या मैं शुरू करूं? कपिलेश, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है। और बाकी सबको? तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा क्या डाउट है बोलो। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट तो? देखो मैं यस सर। क्या, हाँ, ये वाला डायोड शॉर्ट सर्किट रहा। जब ये डायोड ओपन हो जाएगा तो VD के अक्रॉस कुछ तो एक वोल्टेज होगा जिसके वजह से ये वाला करंट यहाँ पर पास नहीं कर पाया। इसीलिए तो हमारा यहाँ क्या होता है, जब टर्न ऑन होता है एक स्विच तो उसके अक्रॉस करंट बढ़ता है। स्विच के अक्रॉस जब स्विच जब ऑन होता है तब क्या होगा, स्विच जब ऑन होगा उसके अक्रॉस करंट फ्लो होना शुरू करेगा। अगर स्विच ऑफ होता है तो उसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। तो ये वाला कंडीशन अभी यहाँ पर भी है IGBT में। तो IGBT जब शुरू करेगा टर्न ऑन के लिए, VC उसका मैक्सिमम था बिकॉज VC पहले से ऑफ था। IGBT जब ऑन करेगा तो थोड़ा डिले टाइम लगेगा। तो ये कितना टाइम लगेगा, VC 0.9 VC तक जब पहुंचेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डिले टाइम। और करंट वहां से 0 से वो स्टार्ट करेगा 0.1 तक, वो इंक्रीज करता है यहाँ पर करेक्ट 0.1 तक, तो वो होता है डिले टाइम। जो मिनिमम करंट जो इंक्रीज करेगा और मिनिमम वोल्टेज जो डिक्रीज करेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिले टाइम। अभी क्या है राइज टाइम। राइज टाइम में क्या होता है, वोल्टेज का परसेंटेज जहां पर 0.9 था वहां से पूरा डिक्रीज करके ऑलमोस्ट आ गया 0.1 तक। देख रहे हो, पूरा डिक्रीज कर गया वोल्टेज। उसी टाइम में करंट अपोजिटली रिएक्ट करके उसको इंक्रीज कराने में काम करता है। यहाँ पर करंट इंक्रीज कर रहा है तो करंट यहाँ पर बिकम्स मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर IC मैक्सिमम। तभी जाके ये वाला सर्किट को हम लोग बोल रहे हैं टर्न ऑन सर्किट। समझ में आया? बोलो। यस सर। ठीक है, क्योंकि जब हमारा सर्किट ऑन होता है, एक स्विच का हम लोग ऑन करते हैं रैंडमली। आप लोग सोचो एक स्विच है घर में, मैं उसको ऑन किया तो अगर मैं, मेरा फैन चलेगा कैसे, तो उसके अक्रॉस में करंट अगर फ्लो करके फैन से पहुंचेगा तभी जाके तो मेरा स्विच मतलब फैन काम करेगा। अभी मेरा स्विच को मैं ऑफ कर दिया तो डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया मतलब वहां पर वोल्टेज क्या हुआ, ज्यादा हो गया, तो तभी और करंट फ्लो नहीं कर पाएगा उसमें। समझ रहे हो? ये वाला सर्किट समझे कि टर्न ऑन साइकिल में क्या होता है। सर हाँ, सर टर्न ऑन में 0.1 IC से 0.9 IC जाएगा। क्या ये जो करंट तो, हाँ, यस सर। हाँ हाँ करंट इतना ही है। और सर वोल्टेज 0.1 VCE। पहले वोल्टेज आएगा, वोल्टेज कहाँ से आएगा, वोल्टेज आपका आता है पूरा हाई से पूरा डिक्रीज करके कितना तक आएगा, 0.1 VC तक आएगा। पहले इनिशियली जो आता है थोड़ा सा डिक्रीज करता है, वो डिले टाइम दिया गया है सर्किट को, क्योंकि सर्किट अगर ज्यादा वोल्टेज डायरेक्टली इंक्रीज कर जाएगा या ज्यादा वोल्टेज सडनली डिक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पर फॉल्ट हो सकता है। इसीलिए थोड़ा डिले टाइम देके उसको हम लोग करते हैं। तो वो एक्चुअली सर्किट में इनबिल्ट होता है। वो डिले टाइम अगर आप रिड्यूस कर सकते हैं, तो जितना डिले टाइम हम सर्किट को देंगे उतना टाइम लगेगा IGBT को ऑपरेट करने में। समझ में आया? और जितना डिले टाइम को आप रिड्यूस करेंगे तो उतना जल्दी IGBT आपका टर्न ऑन होगा। समझ में आया? यस सर। अभी मैं गया उसका अपोजिट को, जैसे कि टर्न ऑफ साइकिल में अभी मैं जा रहा हूँ। टर्न ऑफ में क्या होता है, टर्न ऑफ में पहले से मेरा IC था फुल्ली लोडेड कंडीशन में, तो वो क्या करेगा, तो यहाँ पर भी वही डिले टाइम रहेगा, फिर इनिशियल फॉल टाइम रहेगा और फाइनल फॉल। IGBT का थोड़ा एडवांटेजेस है, जो वो जब
ऑफ होता है तो थोड़ा थोड़ा करके ऑफ होता है, डायरेक्टली सडनली ऑफ नहीं हो जाता है। तो डायरेक्टली स्विचिंग ऑन ना डायरेक्टली स्विचिंग ऑफ से वो लॉसेस ज्यादा हो जाता है। तो ये अगर थोड़ा थोड़ा करके ऑफ करेगा तो लॉसेस क्या रहेगा, वो घट के रहेगा, वो लॉसेस इतना नहीं रहेगा। इसीलिए इसका टर्न ऑफ साइकिल में क्या होता है, थोड़ा वो डिक्रीज करके फिर और एक बार डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका आईसी, यहाँ पर आईसी आपका फुल, ये थोड़ा ग्राफ थोड़ा ऐसा है, ये वाला आपका यहाँ जाना चाहिए ग्राफ को, ठीक है। ये आईसी आपका फुल लोडेड होगा, ठीक है। यहाँ पर 0.1 से वो इंक्रीज करके पूरा जाके सेटल होगा आईसी पे। आईसी आपका मैक्सिमम करंट रहता है, राइट, जैसे कि बीसी है वहां पर आईसी रहेगा। तो ये वाला थोड़ा इधर दे गया है, ये थोड़ा ऊपर दे के ऐसे देना चाहिए। इसके साथ पैरेलल नहीं रखा है क्योंकि वोल्टेज थोड़ा ज्यादा रहता है, करंट थोड़ा ऐसा रहता है, इसलिए वो नीचे दिया है। यहाँ पर आप लोग देखिए वो क्लियरली समझ जाएंगे। यहाँ पर आईसी आपका क्या है, मैक्सिमम है। जितना भी आईसी आपका मैक्सिमम रहेगा वो वाला अभी क्या है, मैं ऑफ साइकिल में जा रहा हूँ, ऑफ साइकिल में भी सेम ही रहेगा मगर उसका अपोजिट रहेगा। क्या रहेगा उसका अपोजिट, मतलब करंट यहाँ पर डिक्रीज करेगा और वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज करता है, ये वाला साइकिल में। समझ में आ रहा है। तो करंट अगर मेरा डिक्रीज करेगा, करंट मेरा यहाँ पर था मैक्सिमम, आईसी मैक्सिमम था, तो वो डिक्रीज करके कहाँ तक आएगा, 0.9 आईसी तक आएगा। और वोल्टेज कहाँ से था, वोल्टेज था आपका मिनिमम में, बीसी पूरा 0 में था, अभी वो इंक्रीज करके कहाँ तक आएगा, 0.1 बीसीई में आएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिले टाइम। समझ में आया ये वाला पार्ट, डिले टाइम ये रहा। क्या हुआ, ये वाला पार्ट समझ में आया आप लोग को। हाँ कपिलेश। यस सर आया। ठीक है, अभी मैं क्या क्या हूं, जो बाकी जो था फॉल टाइम, जो फाइनल फॉल टाइम, इनिशियल फॉल टाइम, ये हम लोग दो डिवाइड में, वो आईजीबीटी का स्ट्रक्चर के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। पहले क्या होता है, 0.9 आईसी से पहले वो आएगा 0.2 आईसी तक। उसी टाइम में क्या होता है, ये वाला करंट और वोल्टेज आपका डायरेक्टली जाएगा, ठीक है, मगर करंट का जो ब्रेकेज होता है, स्टॉपेज होता है, वो धीरे धीरे फॉल करेगा। मतलब पहले फॉल करेगा 0.9 आईसी से 0.2 आईसी, मतलब फॉल इन टाइम टीएफ का TF1 होगा। तो 0.9 आईसी से आप लोग का कितना होगा, 0.2 आईसी, ये आपका हुआ फॉल 1। एंड TF2 कितना रहेगा, 0.2 आईसी से आपका आ रहा है 0.1 आईसी, वो पूरा 0 वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है सर डिले टाइम में VCE तो 0.1 से कम है। हाँ, 0.1 से वो डिक्रीज कर जाएगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज वोल्टेज, जो लीकेज करंट पढ़ रहे थे। तो अभी क्या होगा, जब सर्किट मेरा पूरा ऑन हो जाएगा तो वोल्टेज पूरा धीरे धीरे 0.1 से भी डिक्रीज करते करते जाएगा ना, पूरा 0.1 से भी तो डिक्रीज करते जाएगा। तो अभी डिले में क्या है, तो डिले में वो नहीं हो रहा है, डिले में वो 0 हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर आप लोग, मैं क्या बोला कि डिले में ये बीसी आपका रहेगा 0। सॉरी, यहाँ पर डिले में आपका VC रहता है 0, ठीक है। मगर जब वो फॉल टाइम रहेगा, वो फॉल टाइम में इंक्रीज करना शुरू करेगा, वो डायरेक्टली पूरा इंक्रीज कर जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि हाफ इंक्रीज तक फिर जाके करेगा, वो डायरेक्टली वहां से इंक्रीज करना शुरू करेगा। जब फाइनल फॉल टाइम रहेगा उस एकरस तक वो इंक्रीज करते जाएगा। जैसे हमारा राइजिंग टाइम था ना करंट का, उसी टाइप का वो करेगा, ठीक है। तो सर फाइनल VCE और IC मैक्सिमम एक ही लाइन में होना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली यहाँ पर भी देखो, वो वाला भी सेम ही हुआ था, VC है और यहाँ पर IC है, ठीक है। तो वो एक्चुअली VC का वोल्टेज वो थोड़ा ज्यादा रहता है वोल्टेज, और करंट मतलब ऐसा नहीं है कि 10 वोल्ट डिवाइस, 10 वोल्ट बैटरी वो 10 एम्पियर करंट ही प्रोड्यूस करेगा, ऐसा है क्या, कहाँ पर। नो सर। तो वो डेफिनेटली वोल्टेज एक, मतलब पावर के हिसाब से वोल्टेज और करंट को बैलेंस करते हैं सब लोग। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर वोल्टेज होगा 10 वोल्ट, उसका मतलब 10 एम्पियर ही करंट फ्लो करेगा सर्किट में।
नहीं है ऐसा। वो डिपेंड करता है आपका सर्किट के पैरामीटर के हिसाब से। जैसे कि एक बैटरी ले गया, बैटरी का रेटिंग अगर जितना वोल्टेज होगा उतना क्या करंट होता है बैटरी में? नहीं होता है। सिंपल एक बैटरी का एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। 5 वोल्ट अगर मैं बैटरी लिया, उसका करंट क्या 5 एम्पियर होगा? नो सर। तो इसीलिए वो वाला पार्ट को थोड़ा ऐसे करके ही दिखाया गया है कि जो अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपका वोल्टेज डिक्रीज करके तो जाएगा, सर वो करंट में भी इंक्रीज कर। हाँ बोलो। हम्म, सर डायग्राम में कैसा करेंगे ये पार्ट आईसी? ऐसा ही करेगा जिस तरीके से दिया गया है, ऐसा ही। सर ऐसा ना? हाँ हाँ, ये वाला आपका टॉर्नर। हाँ बोलो। सर ये 0.9 आईसी जो है वो थोड़ा बढ़ा दिए थे। नहीं ये वाला, यस सर। ये वाला मैं बोल रहा है कि जितना आपका ये अगर घट जाएगा, VCE पूरा घट 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 कर जिसमें देखो मान लो मेरा लिया 10 वोल्ट और 15 एम्पियर करंट जनरेट कर रहा है, उस सिस्टम के हिसाब से ये करंट बढ़ेगा। अगर आपका वोल्टेज कम लेते हैं तो पावर आप किससे जनरेट करते हैं? वोल्टेज और करंट से मिला के आप पावर जनरेट करते हैं। ये सुनो, P=VI। तो ये वाला मैं बोल रहा था, अगर आपका वोल्टेज डिक्रीज करता है, मतलब वोल्टेज और करंट फिक्स लेंगे में, मतलब मान लीजिए आपका ये हो गया 10 वोल्ट का पावर, सॉरी 10 वाट का पावर, ठीक है 10 वाट। तो यहाँ पर आपका वोल्टेज लग गया 5, यहाँ पर लग गया 2, करेक्ट। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं लूंगा वोल्टेज 5, मैं लूंगा वोल्टेज है आपका 2 वोल्ट या 3 वोल्ट। करंट उसके हिसाब से मैं मल्टीप्लाई करके लेके 10 वाट कर रहा हूँ। अगर आपका वोल्टेज डिक्रीज करता है तो डेफिनेटली ये वाला इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप कंडक्ट करता है, आगे नहीं। यस सर। तो ये वाला पार्ट ऐसा ही है, आप डायग्राम में यही बनाना जो है यहाँ पर क्या है, ये जनरली वोल्टेज को इंक्रीज करके लिया है, रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा कितना लिया है, ज्यादा ले गया है, इसलिए करंट का वैल्यू डिक्रीज करके दिखाया है। जो काल वाला केस में हुआ था ट्रैक में, आप लोग पूछ रहे थे ना करंट का वैल्यू कैसे वो घट गया इतना मिली एम्पियर में, क्यों है? हम लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि आपका स्विचिंग में लॉसेस कम हो, इसीलिए उसी टाइप का डिजाइन उसमें करा जाता है, ठीक है। सर और एक डाउट है हम्म, सर, जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट फ्लो करेगा, तो सर पावर तो जीरो हो जाएगा ना सर? ये वाला करंट में जीरो में नहीं बोल रहा हूँ। ये वाला पावर पार्ट में पूरा 0.1 से भी डिक्रीज करके बोल रहा हूँ। तो वहां पर स्विचिंग में आपका करंट फ्लो होना चाहिए, वहां पर क्यों पावर कैलकुलेशन करेंगे? पावर कैलकुलेशन एक्रॉस लोड के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, स्विचिंग के एक्रॉस पावर क्यों कैलकुलेशन करते हैं उधर? समझ में आ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। पावर कैलकुलेशन आप किसी भी एक, मान लीजिए आपका मोबाइल फोन है, इतना वाट का पावर वो कंज्यूम करता है, मैं बोलूंगा कि करंट जितना आ रहा है वायर में, उसमें पावर कैलकुलेशन करूंगा क्या? नो सर। तो मैं डिवाइस के ऊपर पावर कैलकुलेशन करूंगा ना सर। स्विचिंग के ऊपर पावर कहाँ से आया? स्विचिंग का जो होता है, अगर मैं वायर में रेजिस्टेंस देता हूं तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, वहां पर वो करंट इजीली पास कर जाता है, राइट। तो रेजिस्टेंस अगर होगा वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो मेरा एक स्विच में मैं जब स्विच को पूरा ऑन कर देता हूँ, वहां पर रेजिस्टेंस जीरो हो गया ना, करंट इसीलिए इजीली पास कर गया उसके अंदर। समझ पा रहे हो? यस सर। तो पावर का रिलेशन उसमें मत डालना। पावर तो डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, तो सब टोटल पावर ही जीरो हो जाएगा। पावर का जीरो हो या नहीं हो, आपका करंट पास कर रहा है सर्किट में या नहीं कर रहा है, नहीं तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे तो पावर तो सभी जगह जीरो जीरो होके चलेगा। मगर जब रेजिस्टिव लोड आएगा, इंडक्टिव लोड आएगा, तभी मुझे पूछना है कि पावर जीरो है कि जीरो नहीं है। अगर लोड आप कुछ देंगे वैल्यू, तभी जाके पावर का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे ना। इस तरीके से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या?
एक वायर में पावर कितना होगा? इतना तो नहीं है ना, समझ पा रहे हो? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या कॉन्सेप्ट में डाउट है? मुझे पूछो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सब जगह? यस सर। ठीक, ठीक है। और ये जो है उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, वो वाला जैसे कि है लोअर गेट ड्राइवर रिक्वायरमेंट, लोअर स्विचिंग लॉसेस है, स्मॉल, बिकॉज आईजीबीटी मोस्ट एडवांटेजेस है, मगर एक डिसएडवांटेजेस है, क्या है? कॉस्टली है। मैं क्यों इसको फास्ट कर रहा हूँ? क्योंकि हम लोग को गेट ड्राइवर सर्किट भी बनना है थोड़ा, ठीक है, कि ये वाला मॉड्यूल आज ही कंप्लीट करना है। ठीक, अगर डाउट रहता है मैं समझा दूंगा। अभी आ गया है गेट ड्राइवर सर्किट, ओके, मॉस्फेट का। सर अगला हाँ, क्लास का लिंक आ गया सर। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो बोलो, अगला क्लास। सर EMT क्लास है सर, लिंक भेज दिए हैं सर। कितना टाइम हो गया क्या? अभी नहीं हो रहा होगा ना? हो गया? हो गया सर। अच्छा, तो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ लेंगे इसको, राइट? और कुछ अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो गेट ड्राइवर सर्किट में नेक्स्ट क्लास को पढ़ा दूंगा, उसको मैं मॉड्यूल कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास को। डाउट कुछ है? नो सर। तो सब लोग एक्चुअली टाइम पे हाँ, क्या कौन एक मैसेज किया? हाँ बोलो अनिमेश। हाँ अनिमेश बोलो, आप मैसेज तो किए, क्या डाउट है पूछो। हाँ आप बोल सकते हो, माइक ऑन करके बोलो, बोलो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा बहुत। हाँ, टी ऑफ कंडीशन आप पूछ रहे हैं, राइट? मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपका राइटिंग से। क्या वॉइस नहीं आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है अनिमेश आपका। अगर वॉइस नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, मुझे कॉल करके आप, मेरा नंबर तो होगा व्हाट्सएप में, तो उसमें कॉल करके आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट? इज इट ओके? जस्ट send me the message, Animesh. I will close the session. Okay. Okay, all of you. Thank you. I will close this section. Okay. थैंक यू सर। Okay. आप थैंक लोग यू का सर। अगर कुछ, ओके, आप लोग का कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, व्हाट्सएप करके ही पूछ सकते हैं। मैं ये वाला वीडियो को आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है?